Hello students of class 8, once again welcome to the online classes. So in the previous video we have done the word problem, that is till question number 12. Let us do the next one, that is question number 13. What you have given in question 13 is a rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? We have given one rational number, and that number is such that when we multiply that rational number with 5 by 2 and add that number with 2 by 3, first we have to take one rational number, we have to multiply that number by 5 by 2 and then add by 2 by 3. What we will get, that is we will getting minus 7 by 12. So we have to find what is the number. So you have to find what is the number. Let us suppose that number as x. Clear? So हमें जो फाइंड करना है पहले हम वो सपोज कर लेते हैं. Let the number be x. You can also write the rational number. Okay. Now it is given that when you multiply this rational number by 5 by 2, means according to question, it is given that when we multiply rational number by 5 by 2, so rational number, what is the rational number? X. So when we multiply 5 by 2 with x and we will add 2 by 3 to the product. The product we will get is 5 by 2x, and then we will add in this 2 by 3. We will get the number as minus 7 by 12. So we have to find that x. Clear? This is one of the equation. How to make equation? You should know. ठीक है, हमें इक्वेशन कैसा बनाना है वो आपको आना चाहिए. सो हमने क्या किया, हमें एक नंबर दिया था रेशनल नंबर x, सपोज किया. अब उसमें दिया है कि x को अगर मैं 5 by 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रेशनल नंबर को 5 by 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसका जो प्रोडक्ट कर रहा है उसमें मैं 2 by 3 को ऐड कर रहा हूँ. सो द नंबर वी विल गेट इज minus 7 by 12. सो वी हैव टू फाइंड दिस x, यानी हमें x को फाइंड करना है. सो अब इसको हम सोल्व कर देते हैं, यानी 2 by 3 को हम यहाँ पर ले आएंगे. सो 5 by 2x is equal to this, we will go in the right hand side, it will become minus. So minus 7 by 12 minus 2 by 3. Then we will take LCM of these two. Therefore 5 by 2 of x equals to LCM of 12 and 3 is nothing but 12. Clear? So here it is 12. So here that is a minus 7 only, and here it becomes minus 8. Clear? So therefore 5 by 2x equals to minus 7 minus 8, that is minus 15 divided by 12. How minus 15? Minus minus plus. 8 plus 7 15, and sign of the bigger number, that is minus. Clear? Then what you have to do? Here we will get minus 15 by 2, 12. Let us take this number over here. So it will become reciprocal of that number, means x equals to minus 15 by 12 मल्टीप्लाई बाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, यानी 2 by 5 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. नाउ वी विल कैंसल आउट. 5 3 जा 2, 6 जा 3, 2 जा, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं ना. 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6. सो x क्या हो गया हमारा, माइनस, ऊपर क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई 2. सो देयरफॉर द नंबर इज, lastly you have to write, therefore the number is minus 1 by 2. Clear? This is how you have to do the solution. हमें पहले नंबर सपोज करना है, जो भी फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है उस हिसाब से इक्वेशन बनाना है, वो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा. क्लियर? लेट अस डू द नेक्स्ट सम, दैट इज 14th one. Now question number 14. What you have given? Lakshmi is a cashier in a bank. एक बैंक है, उसमें लक्ष्मी क्या है, कैशियर है. She has currency notes of rupees, denominations of rupees 100,
₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास 3 डिनोमिनेशन के नोट्स है। कौन से ₹100 के, ₹50 के एंड ₹10 के। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5। वो सब नोट्स के आपको रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या है? 2:3:5। टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज ₹4 लाख। उसके पास ओवरऑल कितना कैश है? 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव? हमें क्या फाइंड करना है? उसके पास जो डिनोमिनेशन के नोट्स है 100, 50 और 10, वो कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। सो हियर वी हैव गिवन द रेशियो ऑफ दैट नोट्स, दैट इज 2:3:5। सो हम वो रेशियो के हिसाब से हम उसको सपोज कर लेते हैं, यानी ₹100 के नोट्स रेशियो में देखने जाए तो 2x, ₹50 3x एंड ₹100 3x एंड ₹50 is nothing but the 5x. Clear? 2:3:5. So let us suppose that one. So let denomination of ₹100, denomination of ₹100 be ratio क्या लेंगे? 2x, be 2x. Then also same way denomination of ₹50 be 3x and same way denomination of ₹10 be 5x. This is how you have to take, suppose the numbers. हमें 3 डिनोमिनेशन दिए थे 100, 50 एंड 10 रुपीज नोट के। वो तीनों के रेशियो दिए थे 2:3:5, 2:3:5, यानी 2x के नोट्स हो गए ₹100 की, 3x की नोट्स हो कितने हैं? ₹50 की, और ₹10 की नोट कितनी है? 5x। तो हमें ये नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, वो नोट्स कितनी है वो फाइंड करना है। नाउ यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन दैट लक्ष्मी हैज टोटल 4 लाख रुपीज। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक लक्ष्मी के पास टोटल कितने रुपीस है? टोटल 4 लाख रुपीस है। ठीक है, टोटल उसके पास 4 लाख रुपीस है। क्लियर? बट वो रुपीस टोटल कैसे आपको करना है? देखो, टोटल 4 लाख है, पर उसके ₹100 के नोट्स कितने हैं? सॉरी, ₹100 के नोट्स 2x है, ₹50 के नोट्स 3x है, ₹10 के नोट 5x है। ये टोटल, इसका टोटल 4 लाख रुपीस है। यानी हमें क्या करना है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो देयरफॉर 2x into 100, then add this one 50 into 3x, 3x into 50 or 50 into 3x, one and the same, plus 10 into 5x, 5x into 10 is nothing but total rupees 4 lakh. Clear? This is how it comes clear. टोटल उसके पास 4 लाख रुपए थे, बट वो 4 लाख रुपए कैसे हुए? 100 की नोट, 50 की नोट, ₹10 की नोट मिला के। बट वो नोट्स को मिलाएंगे डायरेक्टली, हम 100 + 50 + 10 नहीं कर सकते। वो नोट्स कितनी है? तो 2x है, तो 2x को 100 से वो पूरे पैसे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रुपीस को। 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करने का, 5x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो सबको ऐड कर देंगे। सो हमें मिलेगा टोटल 4 लाख रुपीस। तो इस पे से हमें x मिल जाएगा। सो लेट अस डू, therefore 2x into 100 that is 200x plus 3x into 50 that is 150x plus 5x into 10 that is 50x, which is equals to 4 lakh. So therefore ये कितना हो जाएगा? टोटल 200 plus 150 plus 150 that is 400x is nothing but 4 lakh. ये 400 को यहां ले जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। So x equals to 4 lakh divided by 400. 2 zeros cut, 4 thousands are 4000, therefore x is nothing but 1000. यानी x हमें 1000 मिला, तो 100 रुपीस की नोट कितनी होगी? 2 into 1000, 2000. 50 रुपीस की नोट 3 into 1000, 3000. 10 रुपीस की नोट 5 into 1000, that is 5000. Clear? So therefore denomination of ₹100 equals to 2x, means 2 into 1000, that is 2000. Same way for ₹50 it is 3x, means 3 into 1000, that is 3000. And for 10 rupees it is 5x, so 5 into 1000, that is
5000। देखो आपको अगर ये वेरीफाई करना है आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है तो आप कैसे करोगे, ये नंबर्स को ये 100 की नोट से मिला दो, कितने पैसे हो रहे देखो, 2000 इंटू 100 कितने हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, 2 लाख हो गए ना, ये नहीं हो गए, हो जाएंगे ना। 3000 इंटू 50, 3000 इंटू 50 कितने हो जाएंगे, 1,50,000, यानी ये 2 लाख प्लस 1,50,000, 3,50,000 हो गया। 10 रुपीज की 5,000 है तो वो 50,000, सो 3,50,000 प्लस 50,000 दैट इज 4 लाख। आगे आंसर क्लियर। सो जो डिनोमिनेशन जो रेशियो दिया है उसको सपोज कर दो, क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाना है, इक्वेशन बनाना है, फिर उससे आपको x मिलेगा, वो उसके बाद ये x को आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर। सो लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम ही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, तो हम वो करते हैं। Question number 15 is, I have a total of rupees 300 in a coins of denomination rupees 1, rupees 2, rupees 5. टोटल कॉइन्स मेरे पास कितने, 300 रुपीज। कॉइन्स कैसे, रुपीज 1 डिनोमिनेशन, रुपीज 2 डिनोमिनेशन, रुपीज 5 डिनोमिनेशन। द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। अब जो 5 रुपीज के कॉइन्स है उससे जो 2 रुपए के कॉइन है वो कितने गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। The total number of coins is rupees 160. Sorry, total number of coins is 160. Total coins कितने हैं, total 160 coins है। How many coins of each denomination are with me? रुपीज 1, रुपीज 2 और रुपीज 5 के कितने coins है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो हम इसमें डायरेक्टली रेशियो तो दिया नहीं, तो हम कैसे सपोज करेंगे, देखो तीन डिनोमिनेशन है 1, 2 एंड 5, बट यू हैव गिवन द रिलेशन बिटवीन द 2 डिनोमिनेशंस, यानी हमें आपको सिर्फ 2 डिनोमिनेशन के बीच में रिलेशन दिया है, कौन से, रुपीज 2 कॉइन और रुपीज 5 कॉइन। रिलेशन कैसा है कि जो 2 रुपए के कॉइन है वो कितने ज्यादा है, रुपीज 5 कॉइन से 3 गुना ज्यादा है। सो 5 से वो ज्यादा है तो मैं रुपीज 5 के जो कॉइन है उसको मैं x सपोज कर लेता हूं। लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 बी x। सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 2 कितने हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 2 इज इक्वल टू 3 गुना ज्यादा है 5 रुपीज के कॉइन से तो 3x हो जाएगा वो हमारा। अब बचा क्या, 1 रुपीज कॉइन के कितने हो गए तो हमें पता नहीं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 इज इक्वल टू, टोटल हमारे पास कितने कॉइन्स है, 160 कॉइन्स है, यानी टोटल 160 है हमारे पास, ये समझा रहा हो, ये मत लिखना, टोटल 160 है। कितने कॉइन्स के 160 है, रुपीज 1 के, रुपीज 2 के और रुपीज 3 के। रुपीज 1 के तो पता नहीं है, रुपीज 2 के कितने कॉइन्स है, 3x है, रुपीज 5 के कितने कॉइन्स है, x है। सो ये हमें इससे ले जाऊंगा, यानी 160 माइनस 4x मिल जाएगा मुझे, ठीक है। यानी ये 3x प्लस x में यहां ले जाओगे तो मुझे 140 माइनस 160 माइनस 4x मिल जाएगा। और यू कैन ऑल्सो राइट 160 माइनस, टोटल में से 2 को माइनस कर दो, यानी x प्लस 3x माइनस, यानी 160 माइनस 4x मिल गया, ठीक है। सो ये हमारा सपोजिशन हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके मुताबिक हम करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें टोटल कितने कॉइन्स दिए हुए, 300 रुपीज, टोटल रुपीज कितने दिए हुए, 300। सो हमें क्या करना है, सेम वे हमने जो पीछे किया था, 1 रुपीज के कितने कॉइन्स है, 160 माइनस 4x, तो 1 इंटू 160 माइनस 4x हो जाएगा, प्लस इसको ऐड करूंगा 2 रुपीज के कॉइन कितने, 3x, सो 2 इंटू 3x प्लस 5 रुपीज के कॉइन 5x इक्वल टू टोटल कितने रुपीज है, 300 रुपीज। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सो देयरफॉर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, 160 माइनस 4x प्लस 2 इंटू 3x दैट इज 6x प्लस 5 इंटू x दैट इज 5x इक्वल टू 300।
ये 160 को मैं यहां ले जाऊंगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, पहले तो इसको ऐड कर दो, 5x प्लस 6x 11 माइनस 4 कितना बचेगा, 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। सो देयरफॉर 7x इक्वल टू 300 माइनस 160 कितना बचेगा, 140। क्लियर ना, 140 प्लस 160 300 हो जाएगा। सो x कितना मिलेगा, 140 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज नथिंग बट 20। ठीक है, 20 मिला x। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे वो लिख देते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसका 20 हो जाएगा, ऑफ ₹2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स दैट इज 3 इंटू 10 20 60 हो जाएगा, एंड ऑफ ₹1 दैट इज 160 माइनस 4 इंटू एक्स। एक्स कितना है हमारा 20, सो ये हो जाएगा 160 माइनस 80। 160 माइनस 80 इज नथिंग बट 80। क्लियर, वेरिफिकेशन करना है तो मैंने समझाया, इसको सबको मल्टीप्लाई करके 300 आ रहा है कि नहीं, देखो 25 जा 100, 62 जा 120, 100 प्लस 120 220, और ये 80, 220 प्लस 80 दैट इज 300। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर, इसमें रेशियो नहीं दिया था, हमें सिर्फ दो के रिलेशन दिए थे, 2 और 5 रुपीज के कॉइन के। रेशियो कैसे दिए थे कि हमारा जो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स है वो नंबर ऑफ ₹5 की कॉइन से 3 गुना ज्यादा है, यानी मैं 5 को सपोज किया x, तो 2 3 गुना ज्यादा था 3x। अब नंबर ऑफ 1 कैसे मिलेंगे, तो उसमें टोटल कॉइन्स नहीं थे 160, तो 160 में से मैं ये दोनों को निकाल दूंगा, यानी इसका एडिशन 3x प्लस x 4x, तो 160 माइनस 4x। अब क्वेश्चन में दिया था टोटल कितने रुपीस है उसके पास, 300, यानी 1 इंटू दिस प्लस 2 into 3x plus 5 into x, that is 300. Then you have to solve, you get answer 20. So number of ₹5 coins is 20, of ₹2 coins is 3 into 20, that is 60, and ₹1 coins is 160 minus 4 into 20, that is 160 minus 80, that is ₹80. Clear? So let us do the last question, that is question number 16th. Last question of the exercise 2.2. Question number 16, last question of the exercise 2.2. Clear? What is the question given? The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition get a prize of ₹100 and participant who does not win get prize of ₹25. एक ऑर्गेनाइजर एक ऐसे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसमें डिसाइड कर रहा है कि विनर जो है उसको हमें ₹100 देने, और जो विन नहीं कर रहा है मीन्स टूर्नामेंट को लॉस कर रहा है, उसको ₹25 दे दे। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है प्राइस का, ₹3000 ओवरऑल। तो नंबर ऑफ विनर्स हमें फाइंड करना है, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है तो। ठीक है, नंबर ऑफ विनर्स को हमें फाइंड करना है। सो उसको मैं सपोज कर लू x, लेट द नंबर ऑफ विनर बी नंबर ऑफ विनर्स बी x। अब विनर्स x है तो जो लूज कर रहे हो क्या होगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ नॉन विनर्स इज, नॉन विनर्स कितने होंगे, टोटल आपको पार्टिसिपेंट्स कितने दिए 63, तो उसमें से मैं नंबर ऑफ विनर्स को माइनस कर दूंगा, मीन 63 माइनस x। क्लियर, अब टोटल प्राइस कितना है 3000 है, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक टोटल प्राइस हमारी 3000 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ विनर्स उसकी प्राइस क्या होगी, विनर्स की 100 रुपीज है, यानी 100 को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 मल्टीप्लाई बाय x प्लस, और जो विन नहीं कर रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई बाय दिस कर दूंगा। विन नहीं कर रहा है उसको कितना प्राइस मिल रहा है, 25 रुपीज मिल रहा है, सो प्लस 25 इंटू 63 माइनस x। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन विच इज नथिंग बट 100x प्लस 25 इंटू 63 करो तो कितना आ रहा है आपका, मैंने किया हुआ है कैलकुलेट 1575 प्लस माइनस माइनस ये 25x हो जाएगा इज इक्वल टू
3000 क्लियर। सो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100x माइनस 25x कितना मिलेगा 75x 1575 को यहाँ ले जाना पड़ेगा इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575 सो दिस इज नथिंग बट 75x इक्वल टू इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 माइनस 5 5 9 माइनस 7 2 9 माइनस 5 that is 4 and 2 minus 1 that is 1 1425 therefore x is nothing but 1425 divided by 75 you have to calculate this division क्या आएगा आपको देखना है this is nothing but 19 कट करना आपको 19 मिल जाएगा ठीक है यानी x आपको 19 मिला सो नंबर ऑफ विनर्स कितने हो जाएंगे therefore number of winners is equals to 19 ठीक है पता चला ये नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करना था x लिया तो नंबर ऑफ जो विनर्स नहीं है तो पार्टिसिपेंट 63 थे उसमें से मैं x को हटा दूंगा क्वेश्चन दिया था टोटल प्राइस मनी 3000 है यानी विनर्स का 100 है तो 100 मल्टीप्लाई बाय x प्लस लूजर्स का मींस जो विन नहीं करा उसका 25 है तो 25 इंटू 63 माइनस x इक्वल टू 3000 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 19 मिलेगा तो 19 है वो x है और x क्या है हमारा नंबर ऑफ विनर वही हमें फाइंड करना है सो नंबर ऑफ विनर्स इज 19 अगर नंबर ऑफ नॉन विनर्स भी पूछा था तो कैसे करते 63 माइनस x दैट इज 63 माइनस 19 बट हमें इतना ही पूछा है तो हम यही करेंगे ठीक है यहां तक पता चला सो योर एक्सरसाइज 2.2 gets completed we will start our exercise 2.3 in the next video and we will over index the video वो वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 2.3 खत्म ही हो जाएगा टोटल 10 या 15 सम से ठीक है और बहुत इजी सम से जैसे ये एक्सरसाइज 1 में किए थे वैसे ही है बट दोनों साइड वेरिएबल है ठीक है सो कुछ नहीं करना है आपको ये नोटबुक में लिखना है अच्छी तरह से उसको रिवाइज करना है ठीक है और होमवर्क ज्यादा कुछ नहीं है बस ये रिवाइज करो और इसको लिख दो नोटबुक में ठीक है हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 से स्टार्ट करेंगे सो बाय जय हिंद जय भारत।